to continue today with the last two steps of accounting cycle, that is closing entries and post closing trial balance. So today we will discuss about recording closing entries and post closing trial balance, and then we will discuss about the statement of cash flows chapter, because statement of cash flows have some link with the financial statements. Even the cash flow statement is included in financial statement. So after completing the accounting cycle, as we already learned about the making of financial statements, namely income statement, statement of owner's equity, balance sheet, and statement of cash flows. So after completing this accounting cycle, we will discuss the chapter uh, cash flow statement thoroughly. So let's discuss about the closing entries. We already discussed that there are three types of accounts, namely nominal account, real accounts, and personal accounts. We have to close our nominal accounts, while real and personal accounts will carry forward to the next period. So how we can close our nominal accounts or temporary accounts? Temporary accounts, what are the temporary accounts? Temporary accounts are those accounts which must be closed, or which must be their balance must be zero in an accounting period. Okay, so uh, there are uh, four closing entries. Okay, we have to record four closing entries. Number one, closing of expenses, where we have to close our nominal accounts or temporary accounts. So we have to close our revenues and expenses to income summary account. So first two entries would be closing of expenses and closing of revenues to income summary account. We already discussed that we have to close our income statement accounts, namely revenues and expenses. So first we will close our expenses accounts into income summary account, and then closing of revenues to income summary account. First we will discuss about the closing of expenses to income summary account. Okay, for closing of accounts, there is a method that if your account is debited first, then for closing you have to credit that account now. When you will credit that account, the balance of that account will be zero. So all the expenses accounts have debit balance. We already discussed that expenses accounts have debit balances. So to get the balance zero, we have to close our accounts into income summary account by credited all the expenses accounts. You can see that income summary account is now debit, and all the expenses accounts be credited. Cost of goods sold account, salary expenses account, rent expenses account, depreciation expenses account. So जब आप ने किसी अकाउंट को क्लोज करना हो, उसके बैलेंस को जीरो करना हो, तो आप क्या करते हैं, उस अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं।
जैसे पहले आपके पास एक्सपेंसेस तमाम के तमाम, अगर आप इसको अपने ट्रायल बैलेंस में भी देखें, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें, तो आपके पास तमाम के तमाम अकाउंट्स डेबिट में शो हो रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, उसको क्लोज करना है। तो आप क्या करें, तमाम के तमाम जो एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं उनको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। और क्लोज कहाँ करने हैं, इनकम समरी अकाउंट में करने हैं। तो जो दूसरा अकाउंट है इनकम समरी अकाउंट, उसको क्या कर दें आप, डेबिट कर दें। इस तरह आपके तमाम के तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स ये जीरो हो जाएंगे या क्लोज हो जाएंगे। लाइकवाइज क्लोजिंग ऑफ रेवेन्यूज टू इनकम समरी। सो you know that all the revenue accounts have their balances in credit side, or we can say that all the revenues accounts have credited balance. So if you want to close your revenue accounts, now you have to record your revenue accounts into debited through debit side. So you will record your all the revenue accounts into debit side. You will debit your revenue accounts, and the second one account, that is income summary account, you will credit that account. रेवेन्यू अकाउंट्स जो हैं उनका बैलेंस अगर आप देखें तो वो क्रेडिट पे होता है, ठीक है, उनका बैलेंस क्रेडिट शो कर रहा होता है। आप अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं रेवेन्यू अकाउंट, वो तमाम के तमाम उनके बैलेंसेस आपको क्रेडिट पे नजर आ रहे होंगे। तो जब आपने उसको जीरो करना है तो आप उसको रिवर्स कर दें एंट्री, यानी उसको आप क्या कर दें, आप डेबिट कर दें। तो अब वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। You can see that all the revenue accounts, sales accounts, rental income account, interest income account, professional fee account, these all accounts are debit. आपने इनको क्या किया, ये डेबिट है, डेबिट किया। और दूसरा अकाउंट इनकम समरी अकाउंट जिसमें आपने क्लोज करना है, उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जी, एक्सपेंसेस पहले डेबिट हुए थे ना, और उनके बैलेंसेस आप देख सकते हैं कि वो डेबिट में शो हो रहे थे। तो अब उसको आपने जीरो करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। Now moving towards the third account which has been closed, that is income summary account. Income summary account, we have to close income summary account balance to capital account. You can see that when you made financial statements, you will make income statement first, and you will transfer your balance of income statement. That would be either, that would be net income or net loss. You will transfer that balance to the owner's capital account, or you can say owner's equity statement. So we have to close our income summary account balance to capital account. When all expenses and revenues are closed to income summary account, the next step is to close the balance of income summary account. If the revenues exceeds the expenses, the income summary account will represent credit balance, which will show periodic net income. In order to close the income summary account, the following entry would be incorporated to bring its balance as zero. अगर रेवेन्यू ज्यादा हैं
एक्सपेंसेस कम है तो जाहिर बात है आपका जो बैलेंस होगा वो क्या शो कर रहा होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा। और आपने इनकम समरी अकाउंट को आप क्लोज करना है, उसको आपने जीरो पे लेकर जाना है, तो आप क्या कर देंगे, उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इनकम समरी अकाउंट डेबिट, और दूसरा अकाउंट जिसमें क्लोज करना है वो क्या कर देंगे, आप उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और रेवेन्यूज कम हैं, तो एक्सपेंसेस देखें, आप एक्सपेंस अकाउंट्स को क्या कर रहे होते हैं, डेबिट कर रहे होते हैं, और रेवेन्यूज को आप क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंसेस आप डेबिट बैलेंस शो करता है, तो अब आपने इसको क्लोज करना है, तो इनकम समरी अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। The fourth one account which has to be closed, that is owner's drawings. And how you remember that, where you will close drawing account, you just remember that we will consider owner's drawings, or we will report owner drawings into statement of owner's equity. So as we close our income summary account to capital account, likewise we will close drawing account to capital account. And you can see that owner's drawings account have the debit balance. So now for closing, you will credit your owner's drawings account. You can see drawings account is credit and the capital account is debit. Okay. So this is the example which we have carried. Income summary account, debit and credit. This is closing of expenses into summary account. The second one is closing of revenues into summary account. You can see that expenses are less than revenues. You can see expenses are 4,65,643, while the revenues are 5,33,000. So revenues exceeded from expenses. So revenue account have credit balance. Now we have to close our income summary account. So income summary account should be debited with the $67,357, with the remaining amount. When you will deduct your expenses from revenues, you will get 67,357 rupees. And the fourth one is closing of owner's drawings to capital account. It is very simple that owner's drawings account have debit balance. So now we have to close it into capital account. So we have to credit our drawings account and debit our capital account. So the fourth one entry would be capital account to drawings account. Okay, ji. Now the next topic is post-closing trial balance. After recording your 4 closing journal entries, now you have to post these 4 journal entries into your into the ledger accounts. यस बेटा, हम क्लोजिंग एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपने ये देखना होता है कि पहले बैलेंस कहाँ मौजूद है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप अपना जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसको देखें।
उसमें आपको एक्सपेंसेस कहाँ नजर आ रहे हैं, वहां डेबिट में आपको नजर आ रहे होंगे। अब आपने उसको क्लोज करना है तो वो अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स आप क्या कर दें, आप क्रेडिट कर दें। इसी तरह रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कहाँ नजर आ रहे होंगे, क्रेडिट में। तो अब आपने उसके बैलेंस को जीरो करना है, तो जब आप उसके उनको आप डेबिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस जीरो हो जाएगा, ये अभी आप देखेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज posting of these closing general journal entries into their ledger accounts. Now you can see that this is the cash account. Cash account would be same. Why? Because you can see that in these four entries there is no cash account. So cash account would be the same, or you can say that the closing balance of cash account is 5,77,440. Only those accounts which includes in these journal entries will affect. ठीक है, जोन से अकाउंट्स इन क्लोजिंग एंट्रीज में इन्वॉल्व हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, जस्ट ये अकाउंट्स क्या होंगे, ये अफेक्ट होंगे, बाकी के बैलेंसेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखें ये अली कैपिटल अकाउंट, ये चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज होगा, आपने यहां पर कैपिटल अकाउंट की क्या एंट्री की थी, सेकंड में कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 67,357 से। तो यहां पर ये देखिएगा आप इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और अकाउंट क्या है, इनकम समरी अकाउंट। इसी तरह यहां पर कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं 30,000 के साथ। ये देखिए आपने डेबिट किया है ड्राइंग्स अकाउंट 30,000। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को ऐड किया, यहां पर कम बैलेंस था तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 6,87,357। ये है इस साइड पे, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका बैलेंस क्या है तो आप कहेंगे क्रेडिट बैलेंस है। यानी कि ट्रायल बैलेंस में आप इसको जब रिपोर्ट करेंगे तो कहां पर करेंगे, क्रेडिट साइड पे करेंगे। इसी तरह इन्वेंट्री अकाउंट नो अफेक्ट, अकाउंट्स पेबल नो अफेक्ट, कैरेज एक्सपेंस अकाउंट, नाउ यू कैन सी दैट their balances would be zero. Before closing entries, your carriage expense account balance was 3,000. Was 3,000. Now your balance is, you can see that carriage expense account is credit. So this is, you can see that this is credit balance. Now the balance would be zero. जी, ये जो 3,000 आया ना, दोनों तरफ सेम आ गई ना वैल्यूज। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि दोनों वैल्यूज सेम आई हैं, 3,000 में से 3,000 माइनस करें तो बाकी कोई बैलेंस बचेगा, नहीं बचेगा, जीरो बैलेंस बचा। तो इट मींस क्या हुआ कि ये अकाउंट क्या हो गया है, क्लोज हो गया, इसका कोई बैलेंस ही नहीं है। आप तो अकाउंट तभी लिखते हैं जब उसका कोई ना कोई बैलेंस होता है। तो आपको ये नजर आ रहा है कैरेज एक्सपेंस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। वेट 2 मिनट्स प्लीज बच्चे।
ओके जी, थैंक यू सो मच। तो कैरेज एक्सपेंस अकाउंट क्या हो गया है, क्लोज हो चुका है, इसका कोई बैलेंस नहीं है। फर्नीचर अकाउंट एसेट अकाउंट है, तो ये तो परमानेंट अकाउंट है, इसलिए द बैलेंस वुड बी सेम, नो इफेक्ट। कंप्यूटर अकाउंट में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रेंट एक्सपेंस अकाउंट पे देखें, यहाँ पर क्या था, पहले 30,000 था, और यहाँ पर ये प्रीपेड रेंट अकाउंट है 15,000। तो अब आपने जब उसको 15,000 ही क्रेडिट किया, तो उसकी वजह से आपका क्या हो गया, बैलेंस इक्वल आ गया, जीरो हो गया बैलेंस। सप्लाईज अकाउंट नो इफेक्ट, सेम है। अकाउंट्स रिसीवेबल भी सेम होगा। सेल्स अकाउंट, हाँ सेल्स अकाउंट देखें, सेल्स अकाउंट में आपके के तमाम बैलेंसेस किधर नजर आ रहे थे आपको, क्रेडिट में। तो अब आपने क्या करना था, उसको डेबिट करना था। तो ये देखें, ये साइड भी 5,25,000 है, ये भी 5,25,000 है, तो इसका भी बैलेंस जीरो हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, ये तमाम के तमाम अकाउंट्स आपके डेबिट हो रहे थे, तो अभी आपने इसको क्रेडिट किया, तो जिसकी वजह से इसका बैलेंस जीरो हो गया। इसी तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी आपने क्रेडिट किया, सैलरी एक्सपेंस भी उसी तरह क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी उसी तरह क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट भी क्रेडिट किया आपने 30,000 के साथ, ठीक है। ये ड्राइंग अकाउंट पहले यहाँ पर 30,000 तो था ना आपके पास, यहाँ पर आपने 30,000 उसको क्रेडिट किया, तो आपका बैलेंस जीरो हो गया। यार रेंटल अकाउंट है, रेंटल इनकम अकाउंट, ये भी क्या हुआ था, अच्छा ये इसमें थोड़ा सा, अच्छा नहीं ये पहले की एंट्री है, ओके। तो अब इसको भी आपने क्या कर दिया, इसको आपने डेबिट किया, तो ये 10,000 से डेबिट हो गया। अच्छा यहाँ पर ना जो रेंटल इनकम अकाउंट है, यहाँ पर आपका जो है वो 10,000 इनकम समरी अकाउंट आएगा, ठीक है। ये अनअर्न्ड रेंटल अकाउंट नहीं, ये इनकम समरी अकाउंट आएगा। अच्छा, प्रीपेड रेंट आपका वही सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप क्या करेंगे, वही अब इसको क्रेडिट करेंगे, ये आ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने कहा ये एसेट अकाउंट ही होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, इसका बैलेंस डेबिट सॉरी क्रेडिट होता है। बाकी तमाम एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर बैलेंस देखें, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। ये देखिए ना, ये बैलेंस आ रहा है ना 1,883, तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, किस तरफ जाता है, ये क्रेडिट साइड पे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं आया। सप्लाईज एक्सपेंस पे आया, ये आपने इसको क्रेडिट किया। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये आपके एसेट है। इंटरेस्ट इनकम, इसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इनकम समरी अकाउंट, ठीक है। एक्रूड सैलरी, ये भी लाइबिलिटी का पार्ट है, ये भी नहीं आएगा, अनअर्न्ड भी नहीं आएगा। इनकम समरी अकाउंट, अब ये इनकम समरी अकाउंट जहां जहां पर था, वो तमाम का तमाम आपने इसको क्या कर दिया, ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। जहां जहां ये डेबिट हो रहा था, वो डेबिट में आपने लिख दिया, जहां क्रेडिट हो रहा था, वो क्रेडिट में आपने लिख दिया। तो ये भी आपका क्या हो गए, तमाम के तमाम क्लोज हो गए। अब आप क्या करेंगे, एज इट इज इन लेजर के अकाउंट्स को पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। तो इसका आसान हल ये भी होता है कि आपको जब आप क्लोजिंग एंट्रीज कर लें, तो उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ बनाएं ही लेजर उन अकाउंट्स के जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज में, जैसे एक्सपेंसेस अकाउंट्स, रेवेन्यूज अकाउंट्स, इनकम समरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑनर्स ड्राइंग अकाउंट। बस इनके लेजर बनाएं, और बाकी जो चीजें ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये एज इट इज जो आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था, एज इट इज उठा के आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में लिख दें। हाँ, उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्योंकि चेंज हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट आप उसका जो बैलेंस आ रहा होगा वो लिखेंगे। बाकी तमाम के तमाम अकाउंट्स आपके सेम हैं। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस अकाउंट्स और ऑनर्स ड्राइंग्स अकाउंट वो लिखे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका बैलेंस है ही नहीं। ये तमाम के तमाम बैलेंसेस जो हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड।
अगर आप इसको देखना चाहें तो चलें इसको थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है क्या आया वो सेम है या नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिर्फ चेंज होगा। इधर देखिएगा, अली कैपिटल अकाउंट कितना है, 6,87,000 है। कैश अकाउंट 577 है। इन्वेंट्री 160,000 है। अकाउंट्स पेबल 320,000 है। अभी यहाँ पर देखते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये देखेंगे, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। लेकिन कैश अकाउंट वही है, 5,77,440। कैपिटल अकाउंट मैंने कहा है कि चेंज होगा, और वो वाकई चेंज हुआ। बाकी देखिए, इन्वेंट्री अकाउंट 160,000 ही था। अकाउंट्स पेबल भी 320,000 ही था। यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट्स अफेक्ट होंगे ही नहीं। ये जो एसेट अकाउंट्स होते हैं उनका नॉर्मल जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, एक मिनट सर, ड्राइंग अकाउंट में लाइबिलिटीज है, ये जो हम पैसे अकाउंट से निकालते हैं वो। जी जी, ये ड्राइंग अकाउंट लाइबिलिटीज नहीं है। जो आप पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ करते हैं कैश, उसको ऑनर्स ड्राइंग्स कहते हैं। ओके जी। नेक्स्ट है वर्कशीट एज अ टूल। यानी इसमें आप एक वर्कशीट है, इसको आप देखते हुए बना सकते हैं। यानी आप ये एक्सेल पर भी ये सारा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट है, इसमें आपकी चीज़ें गिवन है। आप इससे इसके थ्रू अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बना सकते हैं। चलिए। जी, जिसका भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन लिख दिया करें। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देखता हूँ चैट को, तो फिर आपका आंसर कर दूंगा। जी, तो ये था आपका अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है वेदर दिस इवेंट should be recorded or not. If that economic event would have to record, then you will record that or those events into general journal. After recording into general journal, you will post those entries into their ledger accounts. You will make all the accounts, their ledger accounts, and then you will report those ledger accounts into trial balance. That is called unadjusted trial balance. In unadjusted trial balance, you will just enlist all your ledger accounts with their balances, whether those balances are debit or credit. After unadjusted trial balance, the next step would be adjustments or adjusting entries. Adjusting entries, we already discussed that there are four types of adjusting entries: prepaid expenses, accrued expenses, unearned revenues, and accrued revenues. So after adjusting entries, you will post those entries into their ledger accounts, and the next step would be adjusted trial balance. After adjusted trial balance, you will make financial statements, and after financial statements, you will record closing entries. After closing entries, you will post those entries into their respected into their respective ledger accounts, and after that you will make
post trial balance, and in post trial balance you will see only the asset accounts, liability accounts and capital accounts. अच्छा, एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करें तो उसका लेजर कैसा शो होता है? बेटा ये देखें, ये लेजर ही था ना, ये देखें, ये चले इसको ही ले लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को। ये जो डेबिट साइड है ना, इसको आप फिलहाल भूल जाएं। जब आपने इससे पहले जब क्लोज नहीं किया था तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट का बैलेंस आपका आ रहा था 4,10,000। क्यों? क्योंकि आपकी ये क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट ही नहीं थी, तो आपका बैलेंस कहाँ आता था? क्रेडिट साइड पे। चलें आपको यहां से बताते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये देखिएगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देख लें, ये कहां पर है? डेबिट साइड पे है। यानी आपका बैलेंस था डेबिट साइड पे 4,10,000। अब उसको बैलेंस को जीरो करने के लिए आपने एंट्री क्या की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट किया और जब आपने उसको लेजर में पोस्ट किया तो वो आपके पास, ये देखें, आपने एंट्री क्या की थी? आपने एंट्री यही की थी ना, इनकम समरी अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। ये देखिएगा, ये देखें, इनकम समरी अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, ये कंपाउंड एंट्री की हुई है। ठीक है, तो ये देखिए क्या अमाउंट है? 4,10,000। तो ये देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में इन्होंने 4,10,000 क्रेडिट कर दिया। तो अब डेबिट साइड भी 4,10,000 है, क्रेडिट साइड भी 4,10,000 है, कोई बैलेंस बचा नहीं बचा। तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया, इसका बैलेंस जीरो है। बेटा ये लेजर के बारे में ही बता रहा हूं मैं। जितने भी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनमें जोन जोन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, उनके अलहदा से लेजर अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, फिर जोन जोन सा अकाउंट डेबिट हुआ होता है, उसके जो बैलेंस आ रहा होता है, जो उसकी अमाउंट होती है, उसको आप डेबिट साइड पे लिख देते हैं। और जोन जोन से अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे होते हैं, उनको आप क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। एट द एंड आप देखते हैं कि दोनों साइड के बैलेंस इक्वल हैं। नहीं होते तो जो बड़ी साइड होती है उससे छोटी साइड को माइनस करते हैं, और जो छोटी साइड होती है उसमें उसको बैलेंस के तौर पे उसको लिख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की मैं बात करूं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्लोजिंग एंट्री से पहले बैलेंस आपको कहां नजर आ रहा होगा? 4,10,000 क्रेडिट में। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि जब इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है तो हम इसको ऑपोजिट साइड लेके जाते हैं। ठीक है, डेबिट साइड पे लेकर जाते हैं। तो ये उसका क्या होता है? बैलेंस होता है। तो अब उसको क्लोज करना था, उसके लिए हमें इनको क्रेडिट करना पड़ा। क्लोजिंग एंट्रीज में जस्ट ये याद रख लें कि 4 टाइप्स की क्लोजिंग एंट्रीज हैं। आपने रेवेन्यूज को क्लोज करना होता है इनकम समरी अकाउंट में, इसी तरह एक्सपेंसेस को क्लोज करना होता है इनकम समरी अकाउंट में। थर्ड, आपने इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करना होता है कैपिटल अकाउंट में, और ऑनर्स कैपिटल ऑनर्स ड्राइंग्स को ऑनर्स कैपिटल में क्लोज करना होता है। ये 4 टाइप्स की एंट्रीज हैं। याद रख लें, जब आप रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं तो उस कहाँ क्लोज करना है? इनकम समरी अकाउंट में। रेवेन्यूज आप ये देखें कि उसका बैलेंस आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कहाँ पड़ा हुआ है। रेवेन्यू का अकाउंट आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट में नजर आ रहा होगा, तो अब आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करें? क्रेडिट में करें। इसी तरह
जो एक्सपेंसेस हैं उनका बैलेंस आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट में नजर आ रहा होगा। अब आप उसको क्या कर दें, एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दें और डेबिट इनकम समरी अकाउंट कर दें। अब देखें तो इनकम समरी अकाउंट में क्या आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो आप क्या देखेंगे, आपका जो एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्लोज करना है। तो इनकम समरी अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। इसमें ऑनर्स ड्राइंग्स है तो ऑनर्स ड्राइंग्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ आप उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी उसके रिवर्स आपने चलना है जीरो करने के लिए। ओके जी, तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अच्छा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से पहले हम, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, तो इसलिए ये जो आपका 8th यूनिट है, आई थिंक 8th, जी 8th जो यूनिट है आपका, ये किसके से ताल्लुक रखता है, ये आपका रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। तो इसलिए पहले हम आज इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम दूसरे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इससे रेलिवेंट है, तो इसलिए इसको पहले कर लेते हैं। अच्छा, these are some objectives you can read, ये भी आप देख लीजिएगा। चलें इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। Purpose and importance of cash flow statement. The purpose and importance of cash flow statement are multiple in the sense that it provides significant information to the users of financial statements of an organization related to the cash receipts. Cash receipts mean cash inflows, means you will receive cash, and cash disbursements means you will pay cash, that is cash outflows during an accounting period. The cash is constituted as a lifeblood of a business. Therefore, the managers and the owners critically focus on importance of cash flow statement as it portrays the movement of cash over a period of time. Understanding the flow of cash is specifically important to having a handle on the pulse of the enterprise. The detailed disclosure of individual sources and uses of cash makes the cash flow statement useful to the users. The cash flows information embodied in this statement facilitates the user to answer some questions such as the following. Why do the net incomes as reported in the income statement of giant stock companies applying accrual basis of accounting differ from the cash balance as reported in the balance sheet of the same year, and how it was reconciled? How much the cash was collected from different sources, how much the cash was disbursed, how much the tax and dividends were paid, what were the non-cash items which were readjusted in the नेट इनकम। ये लाइफ ब्लड है, ठीक है, बिजनेस का। कैश होगा तो काम चलेगा, इसलिए जो ऑनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इस पर भी नजर रखें कि कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कब कब कैश इनफ्लोज है और कब कैश आउटफ्लोज है। ठीक है जी। ओके जी। अब क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है, तो इसको हम पढ़ चुके थे कि इनको हम क्लासिफाई करते हैं 3 एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जब भी आप कैश फ्लोज स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख रहे होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देख रहे होते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। तो
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? The items classified in the cash collection inflows and cash disbursements in the operating activities are following below. Cash inflows, अब वो बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये चीजें आ सकती हैं आपकी। कैश सेल्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल marketable securities, cash received from royalties, fees, commission, cash collected from the periodic premium of insurance policy, cash collected for tax refund, cash collected from rentals, advances from customers and clients. This is cash outflows, cash paid on purchase of merchandise. मर्चेंडाइज का आपको पता है, बताया भी है कि ये क्या है, इन्वेंट्री, जिसको आपने सेल करना होता है। कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, cash paid for taxes and penalties, payment of interest on loans, cash paid against accounts payable for purchase of merchandise, cash paid on rentals, cash paid by insurance enterprise for annuities and policy benefits. अच्छा, ये तो तमाम चीजें हो गई। इसका एक बेहतरीन जो क्रक्स है ना, वो ये है कि जो जिनका ताल्लुक आपके इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स के साथ होता है, वो तमाम के तमाम आपके कहाँ आ रहे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ रही होती हैं। जैसे रेवेन्यूज है, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इसी तरह आप एक्सपेंसेस करते हैं तो कैश पे करते हैं, तो ये किस में आते हैं? ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। तो ये इसको याद आप ये रख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके जो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उसमें आप फिर देख लें, कोई भी चीज जो कलेक्ट कर रहे हैं आप कैश, तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। अगर आप कैश पे कर रहे हैं, डिसबर्स कर रहे हैं, तो वो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। Investing activities, the items classified in the cash inflows and outflows falling in the investing activities are described below. Cash inflows from sale, disposal of property, plant and equipment, from sale of intangible assets, from collection of note receivable of long terms, from selling of note receivable, from disposal of investments excluding short term, from sale of equity or debt instruments, cash collected from advances and loans already made to other parties, cash outflows, cash paid for purchase of property, cash paid for purchase of intangible, cash paid as loan against long term, for purchase of long term investments, for purchase of cash payment for future contracts and options. अब इन्वेस्टिंग में याद रख लें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपकी जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स होंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होती हैं आपकी, वो इसमें आ रही होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी इसी में शामिल होते हैं। चलें जी, ब्रेक कर लेते हैं नमाज की, और फिर इंशाल्लाह दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं।
Assalamu alaikum. Welcome back. Okay, so we were discussing about the investing activities. Now, financing activities. Cash inflows include from issuance of common stock. If a company issue common and preferred stock, then cash will receive or cash will come to the company. So the cash would be inflows. Same like from issuance of short-term and long-term notes payable. If a company issue short-term and long-term notes payable, and if company issue bonds and debentures from sale of treasury stocks, from other contributions by owners. Financing activities means के पैसा कहाँ कहाँ से आएगा. ठीक है, फाइनेंसिंग ये होती है कि पैसा आएगा कहाँ से. पैसा कॉमन स्टॉक्स के थ्रू आता है, फिर नोट्स पेबल के थ्रू आता है, बॉन्ड्स के थ्रू आता है, डिबेंचर्स के थ्रू आता है. Cash outflows for purchase of trade stocks, for redemption of bonds and debentures, for withdrawals by owners other than joint stock companies, for payment against short-term and long-term notes payable, for payment of dividends. Dividends की जो पेमेंट है वो भी किसके अंडर आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगी. Okay, it is worthwhile to add here that the above items of cash inflows and outflows are not the conclusive. Certain other items, according to the nature of business activities and transactions conducted, can be identified and classified in the operating, investing, and financing activities. It may also be noted that dividend payment to shareholders can be presented either in the operating activities or in the financing activities. वो कह रहे हैं कि भाई dividend payments को आप ऑपरेटिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं और फाइनेंसिंग में भी कर सकते हैं. वन स्कूल ऑफ थॉट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डिविडेंड पेमेंट इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द व्यू दैट the dividend can only be paid out of profits. The receipt of profit is presented in the operating activities. Therefore, the distribution of profit should be presented in the operating activities. एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जो डिविडेंड पेमेंट आप करते हैं वो प्रॉफिट में से करते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट में से करते हैं तो प्रॉफिट को आप कहाँ पर लेकर जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाते हैं. तो इसलिए डिविडेंड पेमेंट्स को क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होना चाहिए. द अदर स्कूल ऑफ थॉट इज ऑफ द व्यू दैट द डिविडेंड इज ऑलवेज पेड अगेंस्ट द फाइनेंसिंग मेड बाय ऑनर्स शेयर होल्डर्स एंड द पीरियोडिक अर्निंग्स आर प्रेजेंटेड आर as increases in the owner's equity. The dividend payment decreases equity, therefore, the payment of dividends should be presented as cash outflows in the financing activities. क्योंकि इसका ताल्लुक वो कह रहे हैं कि भाई ऑनर्स इक्विटी के साथ होता है और डिविडेंड पेमेंट करें तो इक्विटी ऑनर की कम होती है, तो इसलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए. Therefore, it depends upon the professional opinion of the concerned organization staff either to present the payment of dividend in the operating or the financing activities. Both the treatments are acceptable. The foregoing treatments are not controversial and can be dealt with according to the expediency. ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं. फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है. ठीक है, इसके 3 सेक्शंस होते हैं. आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को 2 मेथड से आप इसको बना सकते हैं. ठीक है, 3 मेथड्स का 3 जो एक्टिविटीज हैं उनका तो आपको पता है, 3 सेक्शंस जो हैं इनका आपको पता है, लेकिन इनके मेथड्स कौन कौन से होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं. एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है. सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड. ये देखें, डायरेक्ट मेथड में आप सिंपली जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें अगर कैश आपको रिसीव हो रहा है तो कैश इनफ्लो लिख देंगे, कैश आउट फ्लो हो रहा है, कैश पे करें तो कैश आउटफ्लो लिख देंगे. जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है सबसे पहले, तो कैश इनफ्लोज में क्या क्या आ जाएंगे? कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, इनकैशमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज. फिर कैश आउटफ्लोज है कैश पेड फॉर परचेजेस, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश पेड फॉर सैलरीज, कैश पेड फॉर
इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनको आप ये देखें 270,000 था कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है 225,000। तो पीछे आपके 45,000 क्या बच गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश कलेक्ट किया, आपके पास जो गाड़ी थी और मशीनरी थी ओल्ड, उसको आपने बेच दिया, तो उसको बेचने से जो आपको कैश रिसीव हुआ वो कैश इनफ्लोज में आ जाएगा। और इसी तरह आपने एसी परचेज किया है, न्यू व्हीकल परचेज की है, तो उसके लिए आपको कैश पे करना पड़ा है, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो 95,000 में से 750,000 माइनस हुआ, तो ये नेट कैश आउटफ्लो हुआ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, आपको कैश फ्लो इनफ्लो क्या है आपका कम है। इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपने कंपनी ने इशू किए कॉमन स्टॉक्स बॉन्ड्स, तो उसके थ्रू क्या हुआ कैश कलेक्ट हुआ, तो ये आपका आ गया 850,000। और कैश आउटफ्लो में क्या है कैश पेड फॉर डिविडेंड्स, जस्ट डिविडेंड्स जो पे किए हैं आपने 5,000, तो क्या नेट कैश इनफ्लो आ गया फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज 845,000। अब तीनों के जो कैश फ्लोज हैं उनको ऐड और लेस कर लें। जैसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है तो ये पॉजिटिव 45,000 है, इसी तरह फाइनेंसिंग में भी पॉजिटिव था, तो 8,45,000 प्लस 45,000 ये 1,90,000 बन गया। 8,90,000 में से माइनस करें 6,55,000, तो आपका नेट क्या बन रहा है, नेट इंक्रीज इन कैश जो बन रहा है वो बन रहा है 2,35,000। ये इन्होंने साथ में आपकी आसानी के लिए बताया भी हुआ। ओके, इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग अगर कोई कैश बैलेंस होगा तो आप वो ऐड करेंगे दैट इज 35,000, तो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया एट द ईयर एंड जो कि कितना है 2,70,000। नो बेटा, इसमें कैश इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें जस्ट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आप देख रहे होते हैं। जिस जिस प्रोसेस के थ्रू कैश इनफ्लो हुआ है कैश रिसीव हुआ है तो उसको कैश इनफ्लो लिख देते हैं, अगर कैश आपने पे किया है तो कैश आउटफ्लो कर देते हैं उसको। उसके दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड मेथड हमने सीख लिया, अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके पास तो इसमें क्या होगा, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कहां से करनी पड़ेगी, नेट इनकम से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स से। ठीक है, उसमें तो आप डायरेक्ट मेथड में तो आप यही देख रहे थे कि भाई कैश कितना कलेक्ट हो रहा है, इसमें नॉन कैश आइटम्स भी शामिल होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इसको स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स, यानी इसका डाटा आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा। आप नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स देखेंगे वो कितना है रुपीज 30,000 है। इसके बाद आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस में सबसे पहले डेप्रिसिएशन है। देखिए ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है ना, लेकिन ये क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। यानी आप बस कह रहे होते हैं यार ये ठीक है 5 लाख का हमने ये मशीन खरीदी थी तो 1 लाख हर साल मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ओरिजिनली अगर आप कहें कि कैश माइनस तो नहीं आप कर रहे होते ना, तो आप जस्ट क्या कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन के तौर पर एक्सपेंस में वो अमाउंट डाल देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होगी उसको आप क्या कर देंगे एड अप कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसी तरह बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि जिनको आपने उधार दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने सेल्स की 4 लाख की और वो सेल्स थी क्रेडिट पे, तो अब वो जिससे आपने पेमेंट ली थी वो क्या जनरेट हो गया उससे अकाउंट्स रिसीवेबल, क्या हो गए अकाउंट्स रिसीवेबल।
लेकिन क्या हुआ कि 4 लाख में से उसने 3 लाख ही दिया, 1 लाख उसने दिया ही नहीं, तो वो जो 1 लाख है वो क्या हो जाता है, बैड डेट्स हो जाते हैं। अब वो बैड डेट्स जो हैं उसको लिखना तो है ना कहीं, 1 लाख वो कहाँ लिखेंगे, तो उसको कहाँ डाल दिया जाता है, एक्सपेंस में डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है, एक्सपेंस में। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसको भी आप क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। जब इन दोनों को आपने ऐड किया, 7,000, 3,000, 10,000, तो जमा नेट इनकम ऐड किया, तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजस्टेड नेट इनकम आ गई, जो कि कितनी है, 40,000। कितनी है, 40,000। अब आपने ये देखना है कैश इनफ्लो वर्किंग कैपिटल आइटम्स। अब आप ये देखेंगे कि जो आपके करंट एसेट्स हैं, क्या देखेंगे, करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स हैं वो आया आपके इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ये अब आपको इंक्रीज डिक्रीज का कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि आप दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे, ठीक है, एक पिछले साल की और एक करंट ईयर की, और उसमें देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है, कोई ऐड हो रही है चीज, या डिक्रीज हो रही है, या इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इसमें एक आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में अगर करंट एसेट आ जाए और वो अगर इंक्रीज हो रहा हो, तो आपने उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है। यानी करंट एसेट्स आपकी कैश फ्लो के साथ इनवर्स रिलेशनशिप रख रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप डिडक्ट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें हुआ है, ऐड डिक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐड कर लें डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, आपने उसको ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो आपका ये कितना आ गया, 40,000 प्लस 30,000, तो ये आपका 70,000 बन गया। इसी तरह कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज में कौन से आपके आइटम्स आएंगे, आपके करंट लाइबिलिटीज आएंगी। क्या आएंगी, करंट लाइबिलिटीज। अब देखें इसका ताल्लुक आपके जो कैश फ्लो के साथ डायरेक्ट है। अगर आपकी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो उसको आप माइनस करेंगे, इंक्रीज हो रही हैं तो उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां देखें डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, तो ये देखें यहां पर आपने डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज इन सैलरीज पेएबल, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, ये आपने इसको डिडक्ट कर लिया। तो टोटल जो आपका आउटफ्लोज बन रहा है वो 25,000 बन रहा है, और आपके जो इनफ्लोज हैं वो 70,000 है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका 45,000 आ गया। बाकी चीजें सारी सेम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी उसी तरह चलती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी उसी तरह मूव ऑन करती है। तो ये देख लें, आपका आंसर वही आएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस एट ईयर एंड 2,70,000। इसी को इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि करंट एसेट के आइटम्स आ जाएं तो तब आपने क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज के आइटम्स आ जाएं तो आप इनके साथ कैसे डील करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश बुक,
तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है, कि जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स से स्टार्ट करना है, और आपने देखना है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस कोई हैं तो आपने उनको ऐड कर लेना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं गिवन। अगर वो गिवन है तो अब आप कैसे उसको डील करना है, तो ये देखें, मैंने आपको कहा था कि ये इनवर्स रिलेशनशिप रखता है। तो ये देखें, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैश इनफ्लो हो रहा है ना, तो ऐड करेंगे। इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, तो इसको आप क्या करेंगे, डिक्रीज डिडक्ट करेंगे कैश आउटफ्लो। इस तरह डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ये तमाम के तमाम जो हैं ये आपके करंट एसेट्स हैं। इस तरह करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज का मैंने आपको कहा कि ये याद रखें, इसका ताल्लुक जो है, रिलेशनशिप है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर डिक्रीज होगी तो आप उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। अब इसमें देख लें, जैसे इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, कैश इनफ्लो, ऐड ही करेंगे तो इनफ्लो आएगा ना। इस तरह डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल तो कैश आउटफ्लो, इंक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन, ये तमाम की तमाम आपकी क्या हैं, करंट लायबिलिटीज हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया, शायद कुछ बच्चों को इसका आइडिया हो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से क्या मुराद है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाएं कैश में विद इन अ ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर करंट। और इसी तरह जो लायबिलिटीज हैं वो मैच्योर हो जाएं एक साल के अंदर अंदर। अगर एक साल से ज्यादा उनका टाइम ड्यूरेशन होगा तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, या फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटीज। जबकि जो विद इन 1 ईयर आपके मैच्योर होते हैं उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो इसका ताल्लुक किसके साथ है, आपके करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के साथ। इसी तरह फिर अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि फिक्स्ड एसेट्स, इसमें देखें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसमें आपके करंट एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है जी। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इक्विपमेंट, फर्नीचर, एसी, इसके साथ साथ कॉपीराइट्स, पेटेंट, फ्रेंचाइज, गुडविल, ये भी तमाम की तमाम इसी के अंदर शामिल हो। इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब इंक्रीज अगर हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, कैश आउटफ्लो है। अब इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या मतलब है, मैं कहता हूं कि पिछले साल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू थी 10 लाख, इस साल वो 20 लाख हो गई है। इसका क्या मतलब है, इंक्रीज ही हुई है ना, कितने से, 10 लाख से। इसका मतलब है कि आपने और परचेज कर ली, और परचेज की तो आपने क्या किया, पेमेंट की होगी ना, पेमेंट के थ्रू ही आपने परचेज की, तो कैश क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। इस तरह डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो डिक्रीज का मतलब ये है कि फिर आपने कोई बेच दी होगी और बेचने की वजह से कैश इनफ्लो हुआ होगा। इसी तरह जितने भी टेंजेबल एसेट्स हैं वो जब भी इंक्रीज होंगे तो कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा, डिक्रीज होंगे तो वो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। इसी तरह अगर इंक्रीज हो रहे हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, तो ये तमाम क्या, कैश आउटफ्लो होगा, और अगर डिक्रीज होंगे तो कैश इनफ्लो होगा। इसी तरह इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मेड इन द सब्सिडरी कंपनीज और अदर, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक और सब्सिडरी कंपनी ओपन कर रहे हैं। जैसे आपका एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में था, अब दूसरा ऑफिस आपने डिफरेंट लोकेशंस में बनाना है,
तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन सारी बात है आपने कैश ज्यादा लगाया है ना, तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। जैसे डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, कुछ आपने क्या किया है, सब्सिडरी कंपनीज कम कर दी हैं, तो क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा। इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका ताल्लुक आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के साथ होता है, ठीक है, जैसे बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कैपिटल स्टॉक्स हैं जिसमें कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक आ रहा है, प्रीमियम ऑन कैपिटल स्टॉक्स हैं, डिस्काउंट है, यानी जितने भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के आइटम्स होंगे ना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। अब इसमें अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो वो कैसे आपने चेक करना है कि कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो इंक्रीज इन, अच्छा ये क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, जिसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ता है और फिर आप इनको फाइंड आउट करते हैं। इंक्रीज इन कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स इट मींस कैश इनफ्लोज, जैसे मिसाल के तौर पर बेटा टेंजिबल एसेट मींस जिसको हम टच कर सकते हैं ना। अब एसी है, फैक्ट्री है, सॉरी एसी है, मशीन है, तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपीराइट्स की, पेटेंट्स की, गुडविल की, तो अब इनको आप टच तो नहीं कर सकते ना, तो इनको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, गुडविल हो गई, फ्रेंचाइज होगी, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये तमाम की तमाम क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अच्छा ये सर इनको करंट क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ये रेंट पे ये बढ़ेंगे ये नहीं। अच्छा ये जो आपके एसेट्स होते हैं ना, करंट एसेट्स, ये अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पेएबल हो गया, ये होते ही एक साल के लिए, यानी ये अकाउंट्स रिसीवेबल आप लिखेंगे ही तभी जब आपको पता होगा कि ये मेरे रिसीव हो जाने हैं साल के अंदर अंदर ही। इसी तरह अकाउंट्स पेएबल आप लिखेंगे ही तभी जब आपको पता होगा कि एक साल के अंदर अंदर मैं ये क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा पेमेंट। तो ये श्योर होता है कि ये करंट है या फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्लियर है बच्चा? ओके जी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज इन कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट से पहले आपने कॉमन स्टॉक्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स शेयर इशू किए थे 1000, तो अब आपने 2000 इशू कर दिए। ये जब भी कॉमन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी स्टॉक्स, ये तमाम जो हैं ये जब भी इशू किए जाते हैं, ये तब जब भी इशू किए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज हो रहे हैं, और जब इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब होता है कि पैसे आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आपने पिछले साल इशू किए शेयर्स 1000 के, उसके अगेंस्ट आपके पास 10 लाख आया। इस साल आपने फिर 1000 और इशू कर दिए, उसके अगेंस्ट आपके पास 10 लाख और आ गया, तो ये 20 लाख बन गया ना, इंक्रीज हुआ, तो ये कैश क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। इसी तरह इंक्रीज इन प्रीमियम ऑन कैपिटल स्टॉक, इसी तरह क्या हो रहा है, इंक्रीज इन प्रीमियम ऑन कैपिटल स्टॉक, आप क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो। इंक्रीज इन डिस्काउंट ऑन कैपिटल स्टॉक, अब जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप के पास से पैसा जा रहा है, डिसबर्स हो रहा है, कैश आउटफ्लो होगा। इसी तरह इंक्रीज इन ट्रेजरी स्टॉक्स, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेजरी स्टॉक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। डिक्रीज इन ट्रेजरी स्टॉक्स, कैश इनफ्लो, आपने उनको क्या कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है। इंक्रीज से क्या मुराद है, आपने उनको खरीद लिया है तब वो इंक्रीज हुए हैं, इस वजह से कैश आउटफ्लो। डिक्रीज से ये मुराद है कि आपने उनको सेल कर दिया है,
तो वो कम हो गए और कैश इनफ्लो हो गए। इस तरह इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, आप क्या करें, कैश इनफ्लो होगा। डिक्रीज इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, कैश आउटफ्लो। तो ये तमाम के तमाम आपके पास क्या आ जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। फिर उसी तरह नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश प्रोवाइडेड, फिर नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, फिर ऐड करेंगे और सेम उसी तरह आप इसको देख लेंगे। ये आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है, अभी हम इसको देख लेते हैं। इसको भी ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं बच्चे, कुछ मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मे बी कल और परसों की जो वर्कशॉप होगा, लेक्चर होगा, वो मे बी मैं ना ले सकूं। तो एक टीचर और हो सकता है आपको ये ऑनलाइन सेशंस आपके वो डिलीवर करें कल और परसों के लिए। और पॉसिबल हुआ तो मैं खुद आऊँगा, अदरवाइज वो टीचर जो है वो डिलीवर करेंगे, और फिर मैं इंशाल्लाह मंडे को दोबारा आपके साथ मीटिंग करूँगा। ओके बेटा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको मैं पेपर पैटर्न बताऊं, बिकॉज आई एम जस्ट योर रिसोर्स पर्सन एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जस्ट डिलीवर लेक्चर्स। लेकिन फिर भी मैं चलें कुछ चीज़ें हैं, मैं कंसल्ट करके फिर आपको बता दूंगा। वैसे तो आपके 8 या 9 क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो होपफुली जितना हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें से आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। जी बेटा, मुझे बस अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से मे बी मैं ही ले लूं, लेकिन कंफर्म नहीं है। मैं खुद नहीं चाह रहा था कि लेक्चर किसी और के पास जाएं, लेकिन बस मुझे कुछ मसरूफियत की वजह से इंगेज होना पड़ रहा है 2 दिन के लिए। तो इस वजह से मजबूरी है, वरना मेरा भी दिल नहीं है। मैं खुद ही डिलीवर करना चाहता लेक्चर, पर आपकी कोऑपरेशन से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। नहीं, आप लोगों की 3 वर्कशॉप्स रहती हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे। जो संडे है उसको लेक्चर नहीं होता। बेटा, मुझे असाइनमेंट्स का भी नहीं पता होता, क्विज क्या आ रहा है उसका भी मुझे नहीं आइडिया होता। चले जी।
ओके बेटा, चलें जी, ये हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। द इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। ये सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास गिवन है। अब ये देखें, ये जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट एज एट 36/2019, 36/30 जून 2020। अब ये देखें, दो कंपैरिजन के लिए दे दी गई हैं कि भाई इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो आपने ये कंपैरिजन करना है 2020 का 2019 से। जैसे कैश है, तो ये कैश में अगर मैं बात करूं तो 2019 में कैश कितना मौजूद था, 50,000। 2020 में 60,000 आ गया। तो अब इन दोनों के जो कंपैरिजन करें इन दोनों सालों में, तो क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से इसको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल आपका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में तो आपने जस्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी आ जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स आ जाएंगे आपके, और जो करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, वो तमाम की तमाम आपकी आ जाएंगी। जैसे ये देखें, कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, टोटल जो आपकी सेल्स थी वो आ गई, ठीक है। फिर आपने ऐड किया ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल लेस कर दी क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, तो ये आपके पास क्या आ गया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स। अब ये देखिएगा यहाँ पर, 5 लाख ओपनिंग हो गए और लेस कर देंगे क्लोजिंग, तो ये 5,20,000। तो आपका ये टोटल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है। आप इसको सिंपल भी ये कर सकते हैं कि जैसे इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल था ना, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, अगर करंट एसेट्स हैं और उनका ताल्लुक आपके जो कैश फ्लो है उसके साथ क्या होगा, आपका ताल्लुक जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप रखेगा। तो ये देखें, अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 20,000 से। तो 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स आप उसको क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, डिडक्ट कर दें। तो अगर आप ये देखें, कैश कलेक्टेड कितनी है, 10 लाख है, 10 लाख में 20,000 माइनस करें तो ये कितना आता है, 980,000 ही आता है, 9,80,000। इसी तरह कैश आउटफ्लोज हैं, फिर तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपके, आप इसको ना उसी तरह करें, वो ज़्यादा बेस्ट है जो मैंने आपको वे बताया है। इस तरह करेंगे ऐड लेस, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप सिंपल ये करें कि इसको फिर देखें, इन्वेंट्री है जिस तरह, इन्वेंट्री 770,000 है, इधर 750,000 है, तो 20,000 का इंक्रीज हुआ, इसको भी क्या कर लें, आप डिडक्ट कर लें। ये आपका क्या आ जाएगा, अच्छा ये फिर टोटल करंट एसेट्स हैं, टोटल करंट एसेट्स भी आपके इंक्रीज हुए 50,000 से, इसको भी आप क्या कर लें, डिक्रीज कर लें, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये आप के जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा है, ठीक है। ये कैश इनफ्लोज है आपकी, ओके। इसी तरह आपकी ये जो फिर कहाँ गया, ये देखें, यहाँ से चलें, फिर आपके ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कुछ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये तो सिंपल आप क्या कर दें, उसमें से डिडक्ट कर दें। 200,000 है, तो इसमें 100,000 ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो आप ये करेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसको ऐड करेंगे,
और ये जो 100,000 है इसको आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं आपके, आपने ये एक्सपेंस किए हैं। इसी तरह अदर एक्सपेंसेस हैं, ये भी आपके एक्सपेंस हैं 50,000, तो ये भी क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। और इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये भी जाहिर बात है आपने पे किया होगा, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री से मुराद क्या है कि 20,000 की इन्वेंट्री आपके पास ज्यादा आ गई। इट मीन्स कि आपने ये पैसे लगाए हैं, तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, कैश इनफ्लो नहीं हुआ होगा। इसी तरह टोटल करंट एसेट्स हैं, तो 13 लाख थे, अब 1350,000 हो गए, तो आपके ये क्या होने चाहिए, ये कैश आउटफ्लो में जाएंगे। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स हमने कहा था कि ये हम उसमें जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें इसको डिस्कस करते हैं। इधर लाइबिलिटीज हैं, तो आपकी अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल आपके क्या हुए, इंक्रीज हुए, यानी आपने अभी लोगों को पैसे देने हैं। तो अब जब भी ये अकाउंट्स पेएबल आ गया, करंट लाइबिलिटीज आई और ये इंक्रीज हुई, तो इनको आप क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। इसी तरह इंटरेस्ट पेएबल है, ये भी इंक्रीज हुआ है 10,000 से, इसको भी आप ऐड कर देंगे। टैक्स पेएबल, ये भी 10,000 से इंक्रीज हुआ है, इसको भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको आप खुद से कीजिएगा इंशाल्लाह, यही आपका आंसर आएगा जो यहाँ पर आ रहा है 165,000। इस तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे जाएं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमने कहा था कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पर बात की जाती है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स क्या हो रहे हैं, नेट ये इंक्रीज हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कैश क्या हो रहा होगा, आउटफ्लो हो रहा होगा। तो ये देख लें, आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये कितने से हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये 150,000 से। अच्छा, एक मिनट, इसको ऐड और लेस, और यहाँ पर कोई है आइटम, लॉन्ग टर्म डेट एसेट्स नहीं। हाँ देखिए, इसके अंदर एक चीज आपने करनी है, वो जिसकी वजह से वो 100,000 ज्यादा आ रहा है, कि फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो फिक्स्ड एसेट्स में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी उसको आपने ऐड करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है डायरेक्ट मेथड में 100,000, ये आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करना है। इसी की वजह से ये 100,000 आ रहा है। 100,000 है, और इसके साथ आप क्या कर दें, इसमें वो ऐड कर दें, इंक्रीज इन अकाउंट्स, सॉरी इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, इन 50,000 को ऐड कर दें, तो आपका ये कितना बन जाएगा, 150,000। और ये 150,000 क्या है आपका, ये आपका नेट कैश आउटफ्लो है। फिर चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो सिर्फ आपके दो चीजें आ रही हैं, लॉन्ग टर्म डेट जो बॉन्ड्स हैं और कैपिटल स्टॉक। तो ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, अच्छा आप ना फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इस पैटर्न से भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है ना, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के अगर मेथड से करें तो वो ज्यादा आसान है। ओके जी।
ठीक है। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये इनडायरेक्ट मेथड से है। ठीक है, कि इसको आप कहाँ से करें, इनडायरेक्ट मेथड से करें। अच्छा, है वही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं चेंज है। नेट इनकम वही क्वेश्चन है आपका। नेट इनकम एज, इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने कहा इनडायरेक्ट मेथड में नेट इनकम से हम स्टार्ट करते हैं। तो नेट इनकम एज पर इनकम स्टेटमेंट 60,000 था। ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, सिर्फ 100,000 ऐड कर दिया, एडजस्टेड नेट नेट इनकम आ गया। अब वर्किंग कैपिटल की तरफ आते हैं। तो इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल है, तो हमने कहा था कि अगर इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल आए, अकाउंट्स पेएबल जब आए, ठीक है, ये लाइबिलिटीज की बात है, तो इसमें क्या करना है, आपने उसको ऐड ही करना है। इसी तरह इंटरेस्ट पेएबल है, तो उसको भी आपने ऐड ही करना है। अकाउंट्स पेएबल ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो है ना आपका, ये इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, ये अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। ठीक है, लेकिन ये भी अगर इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल है तो इधर डिडक्ट होना चाहिए। एक मिनट, अच्छा ये कैश इन आउटफ्लो है ना, तो डिडक्ट ही हो रहा है। ठीक है, ये कैश आउटफ्लो है, ये डिडक्ट ही हो रहा है। इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल है ये, ठीक है, ये अकाउंट्स पेएबल नहीं है। इससे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। ये देखिएगा यहाँ पर, अब क्या आ गया, वही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस, तो ये 50,000 आ गया, ये कैश आउटफ्लो है। ठीक है, इसी तरह ऐड कर लेंगे पीरियोडिक डेप्रिसिएशन, तो ये 150,000 हो जाएगा। आपको वो जो पहले बताया गया है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो आप फॉलो ही ना करें। जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करें, बाकी आप इसी तरह करें जैसे ये इनडायरेक्ट मेथड में हुआ है। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये 25,000 का डिफरेंस आया, तो ये कैश इनफ्लो हुआ है। इसी तरह अच्छा, कैश आउटफ्लो में क्या आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इसके अंदर ऐड करते हैं आप नेट इनकम, टोटल बैलेंस आ जाता है, लेस क्लोजिंग करेंगे कैश डिविडेंड्स पेड, फिर आ जाएगा आपका ड्यूरिंग द ईयर 30,000। अब जाहिर बात है, कैश क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, एक मिनट, रिटेन्ड अर्निंग्स का तो ताल्लुक ही नहीं बनता उसके साथ। बचे बस 2 मिनट, इंशाल्लाह इसको अभी हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये जो ये 30,000 है ना, ये इन्होंने एज कैश डिविडेंड दिया हुआ है। ये जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है कि ये क्या है, कैश डिविडेंड है। ये देखें, ये कैश डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, ये, तो ये आपका क्या आ गया, जारी बात है आप पे कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव में आ गया। इसके बाद इन सब को आप क्या कर लेंगे, ऐड और लेस कर लेंगे, तो आपका नेट कैश इंक्रीज कितना हुआ, ₹10,000। यहाँ पर अगर आप ओपनिंग कैश बैलेंस देखें, तो आपके पास यहाँ पर कैश बैलेंस ओपनिंग आ रहा है 50,000, तो ये आप यहाँ पर 50,000 को ऐड करेंगे, तो ये आपका टोटल कैश बैलेंस आ जाएगा 60,000, जो कि आपके पास यहाँ पर भी 60,000 ही शो होना चाहिए। ये देखें, ये 60,000 शो हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये आप बच्चे मुझे समझ नहीं आई कि एक साइड पर ऐड जब ऐड करते हैं, दूसरी साइड पे माइनस कर देते हैं, तब भी ये इक्वल आता है। इस क्वेश्चन की मुझे नहीं समझ आई।
जी, अगर ये स्टूडेंट जिनका ये क्वेश्चन था वो अगर अभी हमारे साथ हैं तो दोबारा क्वेश्चन कर लें, मैं उसका आंसर दे के फिर इंशाल्लाह इसको लीव करते हैं। जी, जो जाना चाहे वो जा सकता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, लगता है वो बच्चा अभी जिसने क्वेश्चन किया था। चलें ठीक है फिर बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोबारा जब फिर सेशन होगा तो उसमें फिर हम इसको देख लेंगे। बेटा ये आसान बुक है, ठीक है, इसी को फॉलो करें, इंशाल्लाह सारा कुछ इससे हल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा हो तो अ, आपकी ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ग्रुप है और उसमें यूट्यूब चैनल है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, वीडियोस में, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, टीचर्स के लिए दुआएं करते रहिएगा। विल सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।